Good morning, everybody. Uh, Welcome to this online session on financial market and ways to invest in stock market. I am Pooja Kohli. I have, by profession, I am a company secretary, and I have worked with the Trident Group for 10 years and with the Ludhiana Stock Exchange for 10 years in the capacity of executive director. And presently, I am a practicing company secretary along with my creating my passion for teaching students in financial markets. So, can we start our session today? Okay. You must have heard about stock market. So, how can you plan your finances in respect to stock market? That is today's topic. So, let's start with our session. You must have heard about this term, Securities and Exchange Board of India. ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये रेगुलेटर है सिक्योरिटीज मार्केट का एंड वी talk about the word securities. Securities is a wider term which includes shares, bonds, debentures, and mutual funds. As an MBA student, you must have heard about all these terms. How to make money from all these products, that is today's topic. So this is the agenda of today's workshop. What is the importance of money? Whether money is literally required in our life or not, पैसा important है लेकिन कितना important है ये आप आज आप सीखोगे. One thing which curbs our money, that is inflation and its impact on our money. Value of compounding, what are the various investment avenues which are available to you as a student when you join your career as a professional, and then what are the investment avenues available to you, and how to invest in stock market. What are the various ways to start your career or your investment passion in stock market, and points to be taken here. Um, have you ever seen this guy? I hope so. Being an MBA student, you must have seen this person in all the financial news channels. He's Mr. Warren Buffett, and you must be astonished by learning about his worth. His worth is 7470 crores US dollars. Just imagine what amount he's making in Indian rupees. 7470 crores in US dollars. And what he says about money. Being Punjabi, we are uh, we are connected with our money, but this person, he says about money that whenever money is concerned, always remember two rules. Rule number one, never lose your money, and rule number two, never forget rule number one. So money is important up to an extent and to the maximum extent. And see what he says. When someone asked him, when did you start investing? He was very embarrassed and said it was very late at the age of 11. And we at the age of 20, 22, even 40, even 45, we thought about equity market and say, no, 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 it's not our cup of tea. So equity market is not bad. Uh, Only one thing is to be taken care that we have to invest in this market in a very systemized way. So we will discuss in today's presentation what are the ways of investing in equity market. This is a general slide which says money has only one language. अगर आज आप मुझे बचाओगे ना तो कल मैं आपको बचाऊंगा, otherwise I will not take care of you anymore if you don't take care of me today. Time has changed. This online session is one of the example that now no more teachers in class which are giving you lectures. You are supposed to learn online in this lockdown period. So, in accordance with the changing times, it's not like that. When we start earning, we have to invest at that time. Now, at the age when we are learning, when we are studying, we have money, we have small amount of money which we get our parent from our parents, that can amount be invested
in equity market or any other investment avenue just to make our future. So see this inflation impact. You must have heard the word inflation. This slide will show you if 1000 rupees today has a value of rupees 1000, in coming 30 years it will amount to 151. In coming 30 years it will have only a purchasing power of 151 only. And second slide that is more appropriate, which you can easily understand. ये अमूल बटर आप लोगों ने खाया ना बहुत बार. 35 years ago it was 6.50 approximately, now 182. This another example of inflation. Another example. All these examples you can very well relate. This example you must have seen in any of your books or any other channel or any other magazine. Have you ever heard that you get Shahi Paneer at the price of rupees 8 only? I think it's today it's 220 or 250. That is the impact of inflation. See, the prices have gone up. Petrol 3.60 per liter. Now it's approximately 78 per liter. See how the prices have gone. Another example. Now, what is the impact of inflation on your life? This video will help you in relating that if you don't take care of inflation at present, then ultimately you will be in a very bad position in future. For an example, if you buy a house at current price of 30 lakhs, after 30 years, when you have to buy your own house, it will price you approximately 1.25 or 1.20 crores, taking inflation rate at 7%, average 7%. If your education, your parents are paying rupees 15 lakhs approximately for your education, for your children you have to pay approximately 50 or 60 lakhs. And the last one is post-retirement needs, which we don't take care right now. But in the coming times or in future, when you are going to join your career or start your career, then you have to take care of this point also, post-retirement needs. Wherein you have to save at least 1 crore 80 lakhs or 80 lakhs or 1 crore approximately for your retirement needs, because at that time you will not have any pensionable jobs. So I think these figures have given you an idea that money is important, and when you go along with inflation, then it is more important to save and invest money. ये एक छोटा सा स्लाइड मैंने आप लोगों के लिए बनाया है. मोह माया आपने सुनी है ना? तो ये मोह माया ऐसी है. आप खुश होते हो जब आपकी सैलरी में 2% का इंक्रीज होता है, बट अगर इन्फ्लेशन 4% पे है तो अल्टीमेटली यू गेट -2%. बट इसको कंपैरेटिवली अगर आपकी सैलरी में से 2% कट कर दिया जाए और इन्फ्लेशन 0% पे है तो हम लोगों को बुरा लगता है, लेकिन दोनों का इम्पैक्ट सेम है. 2 -4 और 2 -0, अल्टीमेटली आप लोग सेम पोजीशन पे होगे. Another example, you get 12% return on fixed deposit when inflation is running at 13%. Ultimately you are getting -1%. लेकिन हम लोग खुश होते हैं जब एफडी पे हमें 12% रिटर्न मिलता है. लेकिन अगर एफडी पे हमें 7% रिटर्न मिले तो हम लोग बुरा मनाते हैं, अरे भाई बहुत कम रिटर्न है. अगर इन्फ्लेशन 4% पे है तो अल्टीमेटली हम इस कंडीशन पे 3% अर्न कर रहे हैं. सो दैट इज द इल्यूजन विच वी हैव इन आवर माइंड. इट हैज टू बी टेकन केयर that inflation and returns, they have both to be taken care while investing. So one thing which you learn from today's session is
every time whenever you think of investment, you have to write out what is the real rate of return. रियल रेट ऑफ रिटर्न इज स्टेटेड रेट ऑफ रिटर्न, जो आपकी एफडी पे लिखा है, जो आपको म्यूचुअल फंड्स पे मिला है, जो आपको इक्विटी पे मिला है, जो आपको बॉन्ड्स पे रिटर्न मिलेगा, लेस इन्फ्लेशन. Whatever you get after deducting inflation, that is your real rate of return, and that is your ultimate income. Another word of advice: 1 rupee saved is 1 rupee earned, but if 1 rupee is saved and invested, it amounts to 2 rupees earned. मूवीज देखते हो आप लोग? संजू जरूर देखी होगी आप लोगों ने. आजकल लॉकडाउन में तो मेरे ख्याल से संजू बार बार आती है टीवी पे. संजू से आप लोगों को अगर कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग के मामले में मुझे एक स्लाइड मिली जो आप लोगों के काम आ सकती है. दीज आर 5 फाइनेंशियल प्लानिंग लेसन्स व्हिच कैन बी लर्न फ्रॉम दिस मूवी. Number 1 is blindly following relatives' investment advice is bad. In the coming years, when you start your career, you will get a handsome amount. Hope so. And when you get money out of your career, then number of people will come to you and they will give you advice how to invest, where you should invest, and blindly following friends or relatives advice, it's very bad. You have to do your own study. You can correct your past mistakes. If you have invested, or if you have part of any investment avenue which is not correct and which has not given you an optimum return, then always you can correct your past mistakes. And third one is nobody lends in bad times. If you have a very bad period right now in your career, in your life, then nobody will help you. So you have to take care of yourself as well as your finances, so that in bad times at least your own finances can help you. Don't dabble in unknown stocks or investment avenues. पिक्चर में आप लोगों ने ड्रग्स देखा होगा, लेकिन मैंने इसको रिलेट किया कि अगर आपको कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट एवेन्यू मिलता है, लाइक जैसे आज की प्रेजेंटेशन में हम लोग 2-3 इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज डिस्कस करेंगे. अगर आपको कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट एवेन्यू मिलता है जिसको आप अच्छे से नहीं समझ रहे हो, फॉर एन एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन says that this investment avenue gives you 20% return or 25% return or say 100% return, there is no such product in the market which gives you at least 100% return. So whenever you come across such investment avenue, beware. It's not like that. Ultimately you will be in problem later on. And don't blindly trust on news and advice given in media. As an MBA student, आप लोगों को कहा भी जाता होगा कि फाइनेंशियल न्यूज चैनल्स देखो, फाइनेंशियल न्यूज़पेपर पढ़ो. तो पढ़ना आपको सारे फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स को है, न्यूज चैनल्स को देखना है, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है तो आप लोग अपनी स्टडी के ऊपर भरोसा करोगे. सुनो सबकी, लेकिन करो अपने मन की. सिंपली है कि जब आप किसी भी फाइनेंशियल न्यूज चैनल पे किसी पर्सन को एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट एवेन्यू के लिए या शेयर के लिए एडवाइस करते देख रहे होंगे, तो आप पहले याद रखिएगा कि हो सकता है कि उस एडवाइस में उसका खुद का स्टेक भी हो. सो डोंट ब्लाइंडली ट्रस्ट ऑन न्यूज और एडवाइस गिवन इन द मीडिया. योर ओन स्टडी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. नाउ कमिंग टू द फाइनेंशियल प्लानिंग. फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. आपके पैदा होने से लेके आपकी रिटायरमेंट तक ये चलता रहता है. आप एक बार प्लानिंग करोगे, उसको रिव्यू करोगे, और जहां पे आपको लगेगा कि गलती है, आप उसे साथ ही साथ सुधारोगे. These are the principles of investing. Let's have smart goals for investment. Smart goal means the goal for which you are investing. You must have a specific goal. आपको बाहर पढ़ने जाना है, आपको बाहर घूमने जाना है, आपका वर्ल्ड टूर है, तो आपको उस टूर के लिए कितने पैसे चाहिए, ठीक है. तो यू मस्ट हैव स्पेसिफिक गोल फॉर विच यू आर स्टार्टिंग इन्वेस्टिंग, एंड दैट गोल मस्ट बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी. नेक्स्ट वन इज दैट इज अटेनेबल. आप लोग अगर
ऐसा कुछ गोल बना के चलते हैं, मुझे मुकेश अंबानी की तरह एंटीलिया जैसा घर बनाना है, तो वो एटलीस्ट गोल जो है वो अटेनेबल होना चाहिए इन रिस्पेक्ट टू योर present resources. That should be realistic and relevant in accordance with your present resources which you are earning or having at this point of time. And the most important in respect to investing is time limit. You must fix time in accordance with which you can achieve your goal. Let's say I have to send my son abroad for further studies. So it means I have 2 years from today for collecting or starting investing money for such goals so that after 2 years I have at least 20 lakhs for sending him abroad for his further studies. Now, these are investment avenues which are available to you. आप इनको नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो. I have categorized them in accordance with risk profile. जब भी आप इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे ना तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज आप लोगों के पास आएगी ना वो है कि आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी क्या है. इफ यू कैन बेयर रिस्क अप टू एन एक्सटेंट, बाइक चलाने से हम लोग स्टार्ट करते हैं. अगर आप 100 की स्पीड मैनेज कर सकते हो ना तो आप 100 की स्पीड पे गाड़ी चला लेते हो. लेकिन अगर आप 40 की स्पीड से ऊपर नहीं जा सकते ना तो आप जैसे ही 5वां गियर डालने लगोगे ना तो आपको डर लगेगा. सो व्हेन वी टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव्स, द फर्स्ट एंड foremost important point to be taken care is the risk which you can handle easily. So I have categorized all the investment alternatives in accordance with the risk. We will discuss today only this one. Stocks. Another way of categorizing investment avenues are one is only fixed return, another one is having only capital appreciation. I hope you understand capital appreciation means कि आपने जो capital लगाया है वो बढ़ रही है. एक है जिसके ऊपर आपकी वो कैपिटल नहीं बढ़ेगी लेकिन सिर्फ उसके ऊपर आपको फिक्स रिटर्न आएगा. एंड थर्ड वन इज you have returns as well as capital appreciation. So see how these investment avenues work. Number one is only fixed return. नाम से आपको समझ में आ गया होगा. जब हम लोग फिक्स डिपॉजिट्स की बात करते हैं, बॉन्ड्स की बात करते हैं तो वो फिक्स रिटर्न इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स. ये देखिए ये कैसे चलते हैं. ये मैंने एक चार्ट बनाया है जिसमें फिक्स डिपॉजिट और इन्फ्लेशन को आप देखेंगे ना तो ये साइड बाय साइड इकट्ठा ही चल रहे हैं. कभी इन्फ्लेशन थोड़ा सा ऊपर है और कभी फिक्स डिपॉजिट का रेट थोड़ा सा ऊपर है, बट अल्टीमेटली दोनों एक जैसा ही चलते हैं. सो ग्राफ आपको एटलीस्ट इतना तो समझा देता है कि फिक्स डिपॉजिट में आप इन्फ्लेशन से ज्यादा नहीं कमा पाओगे, थोड़ा सा कमा पाओगे, इससे ज्यादा नहीं. एंड नेक्स्ट वन इज ये पहले एक स्लाइड देखिए. फिक्स डिपॉजिट में आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी जितनी भी नेटवर्थ है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है. ये आपकी नेटवर्थ को एक्सपोज कर देता है. आई होप यू enjoyed this slide. Next one is capital appreciation. Capital appreciation अगर आप बिजनेस समझेंगे तो बिजनेस में आपकी कैपिटल एप्रिशिएट होती है अगर आपका बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है. तो ये है अनदर एग्जांपल. अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं ना तो वो इन्फ्लेशन को किसी टाइम पे बीट जरूर कर जाता है, बट यू नेवर नो. In approximately 95 or 96, the gold was approximately at 5,000. See, now it is at approximately 40,000. ये कभी बीट कर जाता है लेकिन इसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा आती है. एंड थर्ड वन इज रिटर्न प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन. तो रिटर्न प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन में मैं जो प्रोडक्ट आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ दैट इज स्टॉक मार्केट. ये देखिए ये कैसे चलता है. Every time over the long run it has beaten inflation, but the important point in respect to equity investment is it has given you returns over a longer period. लंबे टाइम पे अगर हो तो आपको वो रिटर्न देता है. For shorter period you can only make money if you are a professional trader and you are doing intraday trading and you have a handset on
डेली ट्रेडिंग, अगर आपका पूरा का पूरा सिस्टम सेट है, आपको इस मार्केट की समझ है, तो आप इंट्राडे में पैसा बना सकते हो. अदरवाइज इंट्राडे इज नॉट मेंट फॉर इन्वेस्टर. एज ए इन्वेस्टर आई विल सजेस्ट यू बी अ इन्वेस्टर एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर. जो मैंने वारेन बफे का सबसे पहले आप लोगों के साथ इमेज शेयर किया, you won't believe, whenever he invests in a stock, he generally invests in a stock for a period of more than 5 years, approximately 10 or 15 years. वारेन बफे जी कहते हैं कि जब मैं किसी कंपनी का शेयर लेता हूँ ना, तो मैं दूसरे दिन उसको ये सोचता हूँ कि ये कंपनी अगले 5 साल या 10 साल के लिए चलने वाली नहीं है, मैं भूल जाता हूँ उसको, बिकॉज वो इन्वेस्ट करने से पहले ही उसको स्टडी करते हैं. और जब स्टडी कर लिया तो उसके बाद वो समंदर में से एक ऐसा मोती निकालने की कोशिश करते हैं जो लॉन्गर रन में उनको 5% नहीं, 10% नहीं, 200%, 500% रिटर्न देता है. सो बी ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर. ये रिलेटिव कंपैरिजन है तीनों इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज का. सी, दिस इज इन्फ्लेशन एंड फिक्स्ड डिपॉजिट इन ब्रेड, ये गोल्ड, और ये आपका इक्विटी इन्वेस्टमेंट. Isn't it fascinating? चलिए, ये 2-3 स्लाइड्स जो हैं वो आपको एक जनरल आइडिया देंगे कि अगर आप अलग अलग इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में इन्वेस्ट करते हो तो अल्टीमेटली आपको कितना रिटर्न मिलता है. Now coming to the securities market, the word security is defined in an act which is known as Securities Contract Regulation Act 1956. It is the most important act for all of our company secretaries and brokers, chartered accountants, everybody. We have to learn about this act very much because every provision is given under this Securities Contract Regulation Act. You must be aware about the shares which are traded at stock exchange. So whenever a share is going to be traded at stock exchange, company has to sign a listing agreement with stock exchange. This listing agreement is governed under SCRA, Securities Contract Regulation Act. So these are the securities: shares, government securities, derivative products, and units of mutual funds. Derivative products and mutual funds, we are not discussing it today. Let's have another session for derivative products. So we will talk about shares today. Simply meaning of shares, whenever you buy shares of a company, it means you are buying ownership in a company. If you have bought shares value 1 lakh rupees, it means you have bought ownership in a company amounting to rupees 1 lakh. Maybe the company is having worth of 1000 crores, but you are participating up to rupees 1 lakh only. And what is the benefit of investing in equity shares? Number one is the value of shares will increase if the company is going up and up. And next one is you are getting dividends as a regular income. Dividend means when a company decides to share its profit with its shareholders in cash form. It is called dividend. So these are the benefits of investing in shares. Number one is possibility of higher return. If you have found a good company and invested in such company, then there is a possibility of getting high returns. The first and foremost thumb rule of investing in stock market: if you can study a share, well and good. If you can't study, then start investing with companies which are part of any index, be it a Sensex, be it a Nifty. You must be aware about the index. Index of NSE is Nifty 50 and index of BSE, Bombay Stock Exchange, is Sensex. Sensex consists of 30 most liquid scripts. Liquid का मतलब होता है जिन शेयर्स को आप इजीली बहुत जल्दी बेच सकते हो. और निफ्टी 50 में जो एटलीस्ट 51 स्टॉक्स हैं, ये बेसिकली 50 स्टॉक्स थे, लेकिन अब 51 स्टॉक्स इसको बोला जाता है क्योंकि इसमें एक शेयर एक्स्ट्रा ऐड हुआ था. सो यू कैन invest in any company which is part of index, any index. So easy example of investing is, let's start with companies of index. So there is a possibility of higher return, easy liquidity,
you can easily buy and sell shares. And third one is, you can if you have invested in a very large company which has a very strong base, then you get the income from dividend on regular basis, because generally the companies which are very old and having strong financial base, they share their profits with their shareholders on regular basis. अब मैंने इतना कुछ आप लोगों को बता दिया, तो थोड़ा सा फिगर वर्क पे चलते हैं कि कैपिटल मार्केट, जब मैं शेयर मार्केट की बात करती हूँ तो वाकई ये इतना स्ट्रांग है। ये देखिए एक एग्जांपल, ये एग्जांपल आपको गूगल पे भी बहुत आसानी से मिलेगी। लेट्स से यू हैव इन्वेस्टेड 10,000 and in 34 years how much it have grown up to। वो मैंने आपको एक चार्ट भी दिखाया, गोल्ड में कितना बन जाएगा। उसके पहले मैंने आप लोगों को वीडियो भी बताया, उसके बाद मैंने आप लोगों को वो रिलेटिव ग्राफ भी बताया। तो यहाँ पे अगर मैं 10,000 की बात करूँ ना, तो 10,000 34 साल में कितने बन जाएंगे, वो आप जो ग्राफ था उसको रिलेट करने की कोशिश करो। ऑब्वियसली शेयर मार्केट में ज्यादा बनेंगे, ठीक है। तो देखो ये कितना बन जाता है, फिगर देख के थोड़ी सी हैरानी होती है। कंपनी देखो कौन सी है, द कंपनी इज विप्रो। नाउ हाउ दिस हैज हैपेंड, पहले इसको समझ लो। से 1980 में आपने एक कंपनी में 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया, तो 100 शेयर्स खरीदा, 100 रुपये का एक शेयर था, तो आपकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हुई 10,000 रुपीज। मैंने आप लोगों को एक कंसेप्ट बताया डिविडेंड का। अगर कंपनी अपना प्रॉफिट कैश फॉर्म में शेयर होल्डर के साथ शेयर करती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। लेट्स से कंपनी हैज डिसाइडेड कि वो आपको कैश फॉर्म में अपना प्रॉफिट शेयर नहीं करेगी, आपको लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स इशू कर देगी। तो फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स इशू करने से कंपनी का कैश फ्लो नहीं हिलेगा, लेकिन शेयर होल्डर को बेनिफिट जरूर मिल जाता है। तो लेट्स से कि 1981 में कंपनी ने 1:1 बोनस डिक्लेयर किया, तो अब आपके पास कितने शेयर्स हो गए, 200। आफ्टर 3-4 इयर्स कंपनी ने फिर बोनस डिक्लेयर किया, तो शेयर्स बन गए 400। अब इमेजिन कीजिएगा कि 100 शेयर, जिसकी 100 वैल्यू वाला जो एक शेयर था, जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज थी, कंपनी ने उसके छोटे हिस्से कर दिए, 10 रुपए का एक शेयर बना दिया, स्प्लिट कर दिया, उसकी फेस वैल्यू को कम कर दिया। तो अब आपके पास कितने शेयर्स हो गए, 4,000। फिर कंपनी ने 1:1 बोनस डिक्लेयर किया, तो कितने हो गए, 8,000 शेयर्स। 1:1 16,000 shares, 1:1 32,000, 1:1 64,000। और अगर कंपनी ने एक के बदले में आपको 2 शेयर्स दिए, जस्ट इमेजिन 1,92,000 शेयर्स। और यहाँ पे आगे आके कंपनी ने फिर अपने शेयर को स्प्लिट कर दिया। अब 10 रुपए की फेस वैल्यू वाला जो शेयर है, उसको और छोटी डिनोमिनेशन का शेयर बना दिया, 2 रुपए का शेयर बना दिया। तो अब आपके पास कितने शेयर्स हो गए, 9,60,000। उसके बाद फिर 1:2 बोनस, 1:1 बोनस, एंड देन 2:3 बोनस। सी द नंबर ऑफ शेयर्स। इतना तो हम लोगों ने ऐसे भी नहीं सोचे थे जितने शेयर्स बन गए। और इसके अलावा अगर कंपनी ने रेगुलरली आपको डिविडेंड भी दिया हो, तो आपके पास ईयरली पे आउट होगा अप्रोक्सीमेटली 6 करोड़ के करीब। एंड दिस इज नॉट एन हाइपोथेटिकल फिगर। अनदर एग्जांपल, ये बाइक देखिए आप लोगों ने, आप में से एज ए स्टूडेंट ऑलमोस्ट सबका मन करता होगा कि ये बाइक हम लोगों के पास होनी चाहिए, लेकिन इस बाइक के पीछे एक छोटी सी कहानी है। अगर आपने ये बुलेट जो है 2001 में खरीदा होता, इमेजिन कीजिए आपने 5.5 करोड़ रुपया बनाने का मौका गवा दिया। 2001 में जो बुलेट की कॉस्ट थी ना, वो 55,000 के करीब थी। अब इमेजिन करो 55,000 की बुलेट और 5.5 करोड़ रुपए फॉर्म में, ये हुआ कैसे। इन 2001 द कंपनी जिसका ये प्रोडक्ट है वो आयशर मोटर्स, उसका शेयर प्राइस जो था ना वो अप्रोक्सीमेटली 17.5 रुपए था। और अगर किसी पर्सन ने 55,000 की बाइक खरीदने की बजाय, बुलेट खरीदने की बजाय इस कंपनी में इन्वेस्ट किया होता ना 17.5 रुपए के ऊपर, तो उसके पास अप्रोक्सीमेटली 30
3,143 शेयर्स होते आयशर मोटर्स के। ये फिगर्स देखो, मैंने लिखा है हर फिगर कुछ कहता है। फरवरी 2020 में इस कंपनी का प्राइस अप्रोक्सीमेटली 17,000 के करीब था, तो ये 55,000 की बाइक जो है ना वो आपको 5.5 करोड़ दे सकती थी अगर आपने उस कंपनी के शेयर्स लिए होते। आज की डेट में ये कल मैंने जो लास्ट रेट डाला है उस कंपनी का अभी चूंकि लो फेज में है, पूरी की पूरी बेयरिश मार्केट चल रही है, तो तब भी कंपनी का जो शेयर प्राइस है ना 14,211 के करीब है। तब भी आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पता कितनी बनती थी? 4.5 करोड़ के करीब। और ये मैंने इस कंपनी का पिछले 5 साल में हाईएस्ट प्राइस लिया है। हाईएस्ट प्राइस जो गया है अब तक पिछले 5 साल में ये 32,000 के करीब है। जस्ट इमेजिन आपका 55,000 10.5 करोड़ के करीब हो, 10.25 करोड़ के करीब हो। So equity investment is good. Only condition is you have find a good share. Now there is another side of coin which is not very good. It is a very dark side. अगर आप किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर लेते हो ना जो आपको पढ़ने में समझने में गलती हो गई, तो आपकी सारी की सारी कैपिटल इरोड भी हो सकती है। जो आपने इन्वेस्ट किया वो सारा का सारा जीरो भी हो सकता है। ये मैंने एक एग्जांपल ली है और ये लिस्ट है। इन कंपनीज ने आपकी वेल्थ को डिस्ट्रॉय भी कर दिया। सो थंब रूल इज फाइंड अ गुड कंपनी after a thorough study. If you can't find a good company, then start investing in companies which are part of index. And another rule of investing is don't cross your limits. Don't cross your limits. If you have thought of investing money in stock market of around about 10,000 rupees only, then never keep it at 12,000. 10,000 means 10,000. 10,000 से ज्यादा नहीं इन्वेस्ट करना। यू कैन हैव एनी रूल। आप मंथली इन्वेस्ट करोगे, ईयरली इन्वेस्ट करोगे, जब मार्केट लो पे आएगी तब इन्वेस्ट करोगे, महीने में एक बार इन्वेस्ट करोगे। यू कैन ड्राफ्ट एनी रूल फॉर योर सेल्फ, बट लेकिन सिस्टम ये है कि जो भी आप इन्वेस्ट करने का मन बनाते हो उस अमाउंट को कभी भी आप चेंज करने की कोशिश मत करना अनलेस यू हैव अ सॉलिड रीजन। कभी भी लोन लेके आपको स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाना। अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हो तो उसमें कम से कम आप उसमें मार्जिन जरूर रखिएगा। मार्जिन मींस जो मैंने सबसे पहले आप लोगों को बोला कि रिस्क तो इसमें है ही है। जितना ज्यादा आप रिस्क लेते हो उतनी ज्यादा आप प्रॉफिट अर्न करते हो, तो लेकिन रिस्क के लिए आप उसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी जरूर लेके चलें। अगर आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखते हैं तो आप बचे रहेंगे इस मार्केट से, बिकॉज यू कैन मेक मनी एंड यू कैन गिव ऑल योर मनी टू द मार्केट। 1 करोड़ नहीं, 1000 करोड़ों में बनाए। और अगर आपको टाइम मिले तो कभी इनको स्टडी करने की कोशिश कीजिएगा। टोटल 1 लाख है आपकी सेविंग जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो पूरा का पूरा 1 लाख कभी भी स्टॉक मार्केट में नहीं इन्वेस्ट कीजिएगा। अगर आप उसमें से 20% इन्वेस्ट करने का मन बनाते हो तो ये सोच के अपने माइंड में पहले रिस्क रख लीजिएगा कि अगर ये 20,000 का 2,000 रह जाए, वेदर आई कैन मैनेज दैट लॉस और नॉट। अगर आप उस लॉस को मैनेज करने का कैपेसिटी रखते हो, then you can go ahead with stock market because it's not gambling. It requires thorough study, but it goes with market. तो इन में से अगर आप किसी की भी इंटरव्यू सुनोगे ना तो ऑलमोस्ट सबका कहना यही है कि मार्केट जो है वो सुप्रीम है, मार्केट से ऊपर कोई नहीं है। अगर आप मार्केट को बेवकूफ समझने की कोशिश करते हो तो अल्टीमेटली आप इस मार्केट से कुछ नहीं कमा पाते। मार्केट सुप्रीम है बिकॉज इट वर्क्स विद एन नंबर ऑफ फैक्टर्स। ये राधा कृष्णन कमानी, अगर आप इनकी एजुकेशन पढ़ेंगे ना तो आपको हैरानी होगी। हम लोग एमबीए के स्टूडेंट्स हैं या मैं सीए सीएस हूँ,
तो हम लोग इतने पैसे नहीं बना पाए. ही इज अंडर ग्रेजुएट. एंड डीमार्ट आप लोगों ने सुना होगा. जस्ट सी हिज वर्थ, what amount of money he has made from stock market. Now coming to the stock market. Uh, ways of investing in stock market. दो चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हैं. One is stock trading and another one is investment. Trading means if you take trading as your career, and investment means if you think of investing in stock market for a longer period. Now for traders or brokers, this investment horizon is only 3 minutes, 5 minutes or a day. But if you are investing in stock market, try to invest for at least 3 to 5 years. Try to start investing for at least 3 to 5 years, because in longer run it will give you an optimum return. So these are the ways of investing in stock market. Number one is primary market. Primary market को अगर आप simple समझना चाहें, पहली बार कोई कंपनी अगर शेयर अपने लोगों को ऑफर करती है और लोगों को कहती है कि आप हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब कीजिए, आप हमारे प्रोजेक्ट का पार्ट बनिए, तो वो है इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू वो कंपनी अपने शेयर्स ऑफर करेगी. तो आप आईपीओ में अपने उस कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं. अनदर वन इज सेकेंडरी मार्केट. अगर आप किसी कंपनी के इनिशियली जो उन्होंने शेयर्स ऑफर किए उसको नहीं खरीद पाए, तो अब आप उस कंपनी का पार्ट बनना चाहते हो, देन अनदर वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट इज टू कम थ्रू सेकेंडरी मार्केट. तो वहां पे एक प्लेटफॉर्म है जिसको हम लोग स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं. स्टॉक एक्सचेंज पे जो लोग उन कंपनी के शेयर्स बेचना चाहते हैं वो आएंगे, और जो लोग किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदना चाहते हैं, बायर एंड सेलर कम टुगेदर एट अ प्लेस एंड दे बाय एंड सेल सिक्योरिटीज. दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट. एंड स्टॉक एक्सचेंज इज अ प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ऑल दीज सिक्योरिटीज. जो 4 हम लोगों ने सिक्योरिटीज पहले डिस्कस की. ये स्क्रीन है जिसको हम लोग स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं. आज की डेट में ट्रेडिंग आपको ऐसे एक कंप्यूटर स्क्रीन पे मिलती है. अर्लियर इट वाज आउटक्राई सिस्टम, जहां पे एक पर्टिकुलर प्लेस पे लोग इकट्ठे होकर शेयर्स को खरीदते थे, बेचते थे. अब ये स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि मैं यहाँ पे घर पे बैठ के भी एक शेयर में ट्रेड कर सकती हूँ. मुझे जो शेयर का रेट दिखाई देगा वो अगर कोई पर्सन बॉम्बे में बैठा है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाहर उसका टर्मिनल लगा है या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में उसका टर्मिनल लगा है, तो उसको भी वो रेट सेम दिखाई देगा. सो इट हैज ब्रोकन द बैरियर्स ऑफ डिस्टेंस व्हेन स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस. ये ऐसी स्क्रीन दिखाई देती है. एंड विद इन अ पार्ट ऑफ सेकेंड रेट्स चेंज. व्हेनेवर यू पुट एन ऑर्डर फॉर बाय, जैसे ही उस प्राइस के ऊपर आपको कोई शेयर्स को सेल करने वाला मिल जाता है, तो आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और ट्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस सिस्टम इज स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम इज कि ये आपको 99.99999% आपको इफेक्टिवली आपके ट्रेड को एग्जीक्यूट करा देता है. ठीक है. एंड इट इज अ ऑर्डर ड्रिवन सिस्टम. जैसे ही आप इसमें सिस्टम में एक ऑर्डर डालेंगे, मे बी बाइंग का, मे बी सेलिंग का, तो दूसरी पार्टी अगर सेम प्राइस पे सेल या बाय करने के लिए अवेलेबल है, तो आपका ऑर्डर साथ ही साथ एग्जीक्यूट होगा और पार्शियली मैच होगा. लेकिन सिस्टम के जो आपका ऑर्डर मैच करने का सिस्टम होगा, दैट इज ऑन स्ट्रिक्टली ऑन प्राइस टाइम प्रायोरिटी. प्राइस टाइम प्रायोरिटी मींस अगर आपका प्राइस आपस में मैच करता होगा तो आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, और अगर दो पर्सन्स के प्राइसेस आपस में मैच करते हैं तो जिसका ऑर्डर सबसे पहले सिस्टम में एंटर हुआ है उसका ऑर्डर पहले एग्जीक्यूट होगा. प्राइस टाइम प्रायोरिटी. ये आपका ट्रांजैक्शन साइकिल है. सबसे पहले आप लोग अगर इस मार्केट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप डिसीजन लेंगे कि मैं कौन सा शेयर खरीदना चाहता हूँ. सिस्टम में आप ऑर्डर प्लेस करेंगे. जैसे ही उसको ऑपोजिट मैच मिलेगा, बाइंग को सेलिंग का और सेलिंग को बाइंग का, तो आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा. उसके बाद क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ ट्रेड्स होगा. क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ट्रेड को आप सिंपल समझो कि जिस पर्सन की जितनी ऑब्लिगेशन बनी, लेट्स से आई हैव बॉट 100 शेयर्स, तो मुझे 100 शेयर्स और मैंने 100 रुपए का ही एक शेयर खरीदा, तो मींस आई हैव टू पे रुपीज 10,000.
एंड क्लियरिंग एंड सेटलमेंट का पार्ट है। यहाँ पे फंड्स एंड सिक्योरिटीज, जिस पर्सन को शेयर्स मिलने हैं उसे शेयर्स मिलेंगे, जो ब्रोकर आपको एप्रोप्रिएट सर्विस दे पाए। ब्रोकर के पास आप ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाओगे फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स। दिस ट्रेडिंग अकाउंट इज मस्ट. If you don't have trading account, you can't buy and sell shares in stock market. Then next one is you must have Demat account. Demat account is an account where you can electronically save your shares. Likewise, अगर आप बैंक अकाउंट में पैसा रखते हैं तो उस पैसे को आप इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर कर सकते हो, है ना, आपको कैश घर में रखने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली जब आप शेयर्स खरीदते हैं तो उन शेयर्स को आप इलेक्ट्रॉनिकली कहाँ पे सेव कर सकते हैं? अपने डीमटेरियलाइजेशन अकाउंट। ये प्रोसीजर है ट्रेडिंग का। आप अपना पहले डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे, उसके बाद ब्रोकर को सिलेक्ट करेंगे। ब्रोकर के पास जब आप अपना केवाईसी कंप्लीट करेंगे, नो योर क्लाइंट फॉर्म कंप्लीट करोगे, उसके बाद आपको एक यूनिक क्लाइंट कोड मिलेगा। All years buying and selling of shares would be in that unique client code. SEBI has mandated for every person to get a unique client code for trading. तो अगर कोई ब्रोकर आपको यूनिक क्लाइंट कोड दिए बगैर आपके यहाँ पे शेयर्स खरीदता है और बेचता है तो that broker can be penalized by SEBI or the stock exchanges. उसके बाद है entering ISIN of a scrip. इसका मतलब है कि हर कंपनी का जब आप नाम डालोगे ना वहां पे, तो हर कंपनी के शेयर्स को एक सेपरेट डीमेट में एक नंबर दिया गया है जिसे हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर। उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट, इस कॉन्ट्रैक्ट नोट में लिखा होगा आपने कितने शेयर्स परचेज किए, आपने कितने शेयर्स सेल किए, कितने प्राइस पे किए, कौन सा ऑर्डर नंबर था, कौन सा एज evidence of buying or selling shares. So whenever you buy or sell shares, you must insist your broker for getting a contract note. Otherwise, brokers are mandated to give you contract note within 24 hours of execution of a trade. ये जरूरी है। अगर आपको contract note नहीं मिलता, then you have to make a complaint to the broker. और उसके बाद ये जो last point है, that is settlement. अगर किसी पर्सन ने शेयर्स खरीदे हैं तो उसे शेयर्स मिलेंगे, बदले में उसे पैसे देने पड़ेंगे। बिकॉज अगर आपने शेयर्स खरीदे हैं तो किसी ने बेचे भी होंगे, तो उस पर्सन को पैसे मिलेंगे और आपको शेयर्स मिलेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेटलमेंट ऑफ ट्रेड्स। आई थिंक दिस हैज ऑलरेडी बीन कवर्ड। नाउ कमिंग टू द लास्ट, दीज आर द इन्वेस्टमेंट मंत्रास। आप नोट कर सकते हैं जब भी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने की बात करते हो। रूल ऑफ 72, रूल ऑफ 72 विल गिव यू एन आइडिया बाय हाउ मच टाइम यू कैन गेट योर इन्वेस्टमेंट डबल। कितने टाइम में आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल कर सकते हो, या अदर वे अराउंड, अगर आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अपना अमाउंट डबल करना है तो आप किस इन्वेस्टमेंट एवेन्यू में इन्वेस्ट करो जो एटलीस्ट आपको उतना रिटर्न दे पाए ताकि आपकी अमाउंट डबल हो सके। फॉर एन एग्जांपल, लेट्स से इन एन एफडी यू गेट 8% रिटर्न। The rule of 72 says 72 divided by 8, it means in 9 years your amount will get double. Or other way around, if I want to get my money double in a period of 6 years, then 72 divided by 6, it means I have to look out for an investment avenue which should give me at least 12% return so that my money goes double. And 115 is for making your money triple. ये rule of mutual funds है। Whenever we have another session on mutual funds, तो उसके बाद हम म्यूचुअल फंड्स के ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट आप ये रूल एक बार नोट करो, कभी आपको म्यूचुअल फंड्स के ऊपर सर्च मारने का मौका मिले। द रूल ऑफ म्यूचुअल फंड्स इज 15 into 15 into 15, 15,000 rupees per month for 15 years in such a mutual fund scheme which gives you at least 50% return, then you can get after 15 years at least 1 crore.
म्यूचुअल फंड स्कीम में एटलीस्ट 15% रिटर्न आ रही है, आप उसमें 15 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे, द अल्टीमेट अमाउंट विच यू कैन गेट इज once ईयर. लास्ट वन, इक्विटी एज थर्ड चाइल्ड. अभी आप जब अपना करियर स्टार्ट करोगे तो आप इस चीज को ध्यान में रखना, नोट कर सकते हो. जनरली हम लोगों की जो इंडियन फैमिलीज में उनमें 2 बच्चे हर फैमिली में अप्रोक्सीमेटली होते हैं, और हर बच्चे के ऊपर पेरेंट्स जो हैं वो अप्रोक्सीमेटली 10,000 रुपीज पर मंथ के करीब खर्चा करते हैं, एंड दैट टू अप टू द एज ऑफ 25 ईयर्स. जब तक गर्ल्स की मैरिज नहीं कर देते, उनको पढ़ा नहीं देते, बॉयज को सेटल डाउन नहीं कर देते, शादी नहीं कर देते, तो अप्रोक्सीमेटली 10,000 रुपए पर चाइल्ड पे खर्चा आता है. If you save that amount of money on, let's say, on another person जिसको हम लोग इक्विटी शेयर मार्केट बोल रहे हैं, तो आपका जो टोटल आउटफ्लो होगा ना 25 साल में, वो अप्रोक्सीमेटली 300 महीने में 30 लाख के करीब होगा. और अगर आप 12% के करीब रिटर्न कमा रहे हैं, just see after 25 years you can get this much amount, 1.89 crores. So start early is your mantra of getting a handsome amount, and this is a final word of advice for all of you. Your parents are not your emergency fund, and for your parents, children are not their retirement funds. You have to invest your own wealth and invest for a long term. That's all from my side. If you have any queries, you can give or start asking any question